والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال। اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں ہے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اعوذ بك من همزات الشيطان وربك ان يحضرون واعوذ بك ربي ان يحضرون آمین یا رب العالمین۔ جی آپ سب کو پی ڈی ایف دکھائی دے رہا ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ چلے ہم لوگ یہاں تک الف سے پہلے غیر منصرف اور منصرف کو باکس کی شکل کے ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ لوگ کو واضح رہی ہے۔ کل اس کے ساتھ میں ہم نے سمجھا تھا لیکن اس کی بہت ڈیپتھ ہے اس کو اور ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے اس کو، ایک ایک چیز ہم باریکی سے سیکھیں گے، ایک آواز کے ساتھ میں سیکھیں گے، یعنی کہ ہم اس کو ساتھ میں بولیں گے، اس کو پورا مکمل دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آ، جو بھی سوالات رہیں گے بہنیں پلیز، کیونکہ ہمارا بہت وقت مختصر سا ہوتا ہے عربک گرامر کا، اس وجہ سے لاسٹ میں جب آپ کو آپشنز دیا جاتا ہے تب آپ بلا جھجک بغیر کوئی تکلف کے سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم دیتے ہی ہیں آپ کو سوال کرنے کے لیے تاکہ آپ کو ہر چیز واضح رہے۔ خیر انشاءاللہ ہم لوگ منصرف غیر منصرف بھی دیکھیں۔ یہاں پر الف اور حمزہ ہے، الف اور حمزہ کو سمجھنا آسان ہے، جب ہم حروف تہجی کی طرف بڑھیں گے تو یہ اور بھی وضاحت دے گا، لیکن یہ ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر حرکت یعنی زیر زبر پیش اور جزم سکون علامتیں نہیں آتی ہیں، جیسے کہ ہارون۔ یہاں پر دیکھیے ہا پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، رو پر تنوین ہے، تنوین پیش کی ہے، تو یہاں الف میں کوئی آپ حرکت نہیں دیکھتے ہیں، زیر زبر پیش یا پھر جزم، علامت سکون بھی نہیں دکھ رہی ہے، زیر بھی نہیں، زبر بھی نہیں، پیش بھی نہیں، آپ یہاں پر کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے، اس کو ایسے ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ اور دوسرا حمزہ، حمزہ ہم الف کو ہی کہیں گے لیکن یہ حرکات کے ساتھ میں ہوگا، ہم نے یعنی حروف ہجا میں حمزہ کو شامل نہیں کرے ہیں ہم، کیونکہ الف کو ہی حمزہ جانا جاتا ہے ابھی اس گرامر میں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، حمزہ اور الف کو لے کر اختلاف بھی ہے کہ اس کو ہم جیسے 28 لیں گے یا 29 لیں گے، اس طریقے سے کہ اس کو الگ الف کو مانا جائے یا حمزہ کو الف مانا جائے، یعنی حمزہ کو سپریٹ رکھا جائے۔ اور اس کی ترتیب میں اگر ہم دیکھیں گے تو جیسے کہ اس کا قاعدہ ہے، ہم تجوید کے بھی کلاسز میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس پر حرکت نہیں ہے وہ الف مانا جاتا ہے، اور اگر الف پر حرکت ہوتی ہے تو آپ اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو اگر الف پر آپ یوں دیکھ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کچھ پا رہے ہیں تو آپ اس کو حمزہ کہیں گے نہ کہ الف کہیں گے، اگر الف پر حرکت ہے، کیونکہ کہا ہی یہی جا رہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور حمزہ کو شامل اس میں نہیں کرنے کی وجہ کیونکہ اگر الف پر حرکت ہے تو وہ حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ حمزہ کا تعلق حرکات سے ہے، حرکات سے ہے، جب الف پر حرکت ہو، زبر زیر پیش اور جزم ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر کلیئر ہے، ابھی ہم سیدھے کیا کریں گے؟ الفابیٹس میں جائیں گے، سیم یہی ٹاپک پھر وہاں پر بھی کور ہوگی۔ حروف تہجی، حروف تہجی یعنی کہ ہجے کرتے ہوئے، ہجے کہتے ہیں نا ہم بچوں کو جب پہلے پہلے پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ہجے سے ہم پڑھاتے ہیں، کبھی جب انہیں زبر زیر پیش کی جب شناخت کراتے ہیں ہم تو کیا کہتے ہیں انہیں؟ ہجے۔ ہجے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ حرف کی ادائیگی کے لیے ہوتے ہیں، حرف کے لیے ہوتے ہیں، کریکٹ؟ جی ابھی تو میری آواز کلیئر ہے نا آپ سبھی کو؟ جی یہ بنیادی لفظ ہوتے ہیں، کوئی بھی لینگویج میں پہلے الفابیٹس میں جاتے ہیں، الفابیٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک 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 حرف ہوتے ہیں، تختی ہوتی ہے، جیسے کہ اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ الف بے پے تے سے، ایسے پڑھتے ہیں نا ہم۔ عربی میں الف با تا ثا جیم ہا اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔
अब ये हम यहाँ जो देख रहे हैं कि हरूफ तहज्जी अल्फाबेट्स, इसको हम यहाँ पर क्या क्या मान रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं, ये तजवीद के लिए तो नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हुर्फ जो होते हैं एक एक करके जो होता है वो हुर्फ होता है, यानी कि अल्फाबेट्स जिसे कहेंगे। तो अरबी जुबान में हरूफ तहजी अल्फाबेट्स बुनियादी हैसियत रखते हैं, तो ये बुनियादी पॉइंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें सबको पता है अलिफ बे ते से, अलिफ बा ता सा, ये क्या होता है उर्दू में अलिफ बे ते से होते हैं, और यहाँ पर बा ता होता है। तो ये बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो अरबी में हम क्या कहेंगे, इसे हरूफुल हिज्जा, इसे कहते हैं हरूफुल हिज्जा कहते हैं। हरूफुल हिज्जा की मदद से अल्फाज यानी कि वर्ड्स बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। अल्फाज लफ्ज जो होते हैं, अल्फाज लफ्ज की जमा है, अल्फाज जुड़कर मुरक्कबात बनते हैं, यानी एक दो तीन ऐसे अल्फाज बनेंगे तो वो फ्रेज बनेंगे, दो अल्फाज रहेंगे तो फ्रेज बनते हैं, फिर अल्फाजों को मिलाकर सेंटेंसेस बनते हैं, फिर सेंटेंसेस के मिलाने के बाद में पैराग्राफ्स बनते हैं, पैराग्राफ्स के बाद में स्पीच पूरी तैयार होती है, किताब पूरी मुकम्मल होती है। लेकिन मदद किससे ली जा रही है, तो पहली बुनियादी बात तक हम पहुंचेंगे तो वो हुर्फ की अदायगी की वजह से होती है, हुर्फ की जमा करने की वजह से होती है, हुर्फों की वजह से होती है। तो हुर्फुल हिज्जा की तादाद यहाँ पर 28 बताई जा रही है। तो हुर्फुल हिज्जा की तादाद में एक हुर्फ जो हमजा की वजह से इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, इस वजह से इसे यहाँ पर 28 कहा गया है। अब ये इख्तिलाफ के मायने ये है कि अलिफ को अलग मानना है और हमजा को अलग मानना है, ये एक हुज्जत के एतबार से। वो इस वजह से क्योंकि अलिफ चूंकि हमेशा खाली होता है तो हम उसे अलिफ कह रहे हैं। चूंकि जैसे ही अलिफ पर आप कोई हरकत देखेंगे वो हमजा कहेंगे, तो जब भी आप देखेंगे कि अलिफ पर कोई हरकत है तो आप अलिफ जबर नहीं कहेंगे बल्कि हमजा जबर या हमजा जेर या हमजा पेश या अलामत सुकून के साथ में। तो ये सबसे पहले देखने की चीज है। अच्छा, अभी एक कोई बहन यहाँ पर, जैसे ये अरबी की तख्ती है, उर्दू में हम कैसे पढ़ते हैं, तो कोई हैंड रेस करे, मैं उनका अनम्यूट करती हूँ। उर्दू में हम कैसे पढ़ते हैं? जी, ठीक है। इदरीस सैयद जिसका है, बताइए जी। और इसको पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीफ बे ते से, जीम है कै, दाल जाल रे जे, हम्म। सीन शीन सॉद जॉद तोई जोई, हम्म। आइन आइन पे खौफ कैफ लैम मीम नून वाव हा, हमजा ये। जी, ये बिल्कुल। अब जो भी चीज बातों को हम ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये उर्दू की तख्ती से पढ़े हम। अरबी में हम क्या जी पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा जिम ऐसे। तो बे ते यानी कि एक ही आवाज जहाँ कहीं भी जो तख्ती में उर्दू में जाती है वो यहाँ पर इसको आ करके पढ़ेंगे, यानी बा ता सा ऐसे। जीम हा का वहां पर भी सेम ही है, जीम है कै इस तरीके से। तो ये ए पे या फिर बे ते, ये जो आवाजें हैं ये पूरे ऊपर की तरफ में जाएंगे अरबी में। और इसमें हमें चीम और डाल रे ये सब नहीं मिलता है, ये अरबी की तख्ती हो गई। अब वहां पर उसमें देखा जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 है, और उसी तरीके से यहाँ पर हमें 28 कंसीडर करना है। तो बोलने का मतलब ये क्या है, ये हुर्फ है। उर्दू भी एक जबान हो गई ना अलग अलग, अरबी की जबान, उर्दू की जबान, इंग्लिश की जबान, तेलुगु, हिंदी, ये सब में क्या होते हैं, हमें अल्फाबेट्स मिलते हैं। तो अरबी के भी अल्फाबेट्स ये हैं। अब इसको मैं इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि हम उर्दू से तारुफ रखते हैं, उर्दू हमें पता है, लेकिन वहां पर हम बेते तो वो ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो उर्दू के लिहाज में उसको उसी तरीके से अदा किया जाता है। अरबी में जब हम आते हैं तो बेते एक जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि बेते से इस तरीके से जो होता है ये रे जे ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अरबी में ऊपर की तरफ आवाज करके आ की तरफ में लेकर देंगे, बा ता रा जा, ऐसा इस तरीके से जाएंगे, जहां पर एक ही आवाज उर्दू में हमें मिलती है। और यहाँ पर जो बात हमें देखने की है, इन हुर्फों को जब आप मिलाते हैं तो अल्फाज बनते हैं, अल्फाज। और अल्फाज की जम लफ्ज से आया है, लफ्ज की जमा है अल्फाज। लेकिन अल्फाज एक मुकम्मल अल्फाज, जिसे हम देखें अगर किताब, हम क्या देख रहे हैं, किताब। किताब, एक मिनट, जिसे मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ।
ये है किताब। लेकिन इससे, ये किताब तो हम ऐसे ही किताब को पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले क्या था? ये काफ ता, इसको अगर हम मिलाएंगे, अलग अलग देखिए आप, काफ ता अलिफ और बा, तो ये अलग अलग जब हम कर रहे हैं तो ये हुर्फी तो हमें मिल रहे हैं अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी एक लफ्ज। और जब कई लफ्ज बन जाते हैं, अल्फाजों को जमा किया जाता है, जैसे दो अल्फाज, ये किताब या वो किताब। वो किताब, दो हो गए ये, दो अल्फाज हुए, दो अल्फाज को एक जगह किया है, तो ये बन गया हमारा दो अल्फाजों की, यानी फ्रेज बन गया। दो फ्रेजेस को मिलाएंगे तो जुमले के, इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हुर्फ की मदद के बगैर में हमने कहीं इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। कोई बात मुकम्मल नहीं होती है, कोई बात मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है, आप लोग को बोर्ड दिखाई दिया ना सिस्टर्स? आप लोग को बोर्ड दिखाई, ये कोई स्क्रीन पे दिख रहे हैं? अच्छा, ओके ओके। अभी दिखाई दिया? यहाँ पर मैं लिखी काफ ता अलिफ और बा, ये क्या हो गया? एक एक हुर्फ है, इसको हमने एक जगह किया। ये मैंने लिखकर बताया था यहाँ पर। इसको हम एक जगह करेंगे, काफ को मिलाइए, ता को मिलाइए, अलिफ को और बा को, ये मिलाकर लिख रहे हैं। लेकिन हम तो अब ये क्योंकि उर्दू जबान जाते हैं इसलिए किताब कह रहे हैं। अगर हम इसको अरबी में लिखेंगे तो काफ के नीचे जेर आएगा, ता के ऊपर जबर आएगा, अलिफ को हम खाली छोड़ देंगे, बा पर लामते जज्म और सुकून हमें पाया जाएगा। क्योंकि हम अरबी को भी जानते हैं, उर्दू को भी जानते हैं। ये हरकत तो वोवेल्स, यानी कि हरकत जो जे जबर पेश होते हैं और फिर हुर्फ, ये दोनों को मिलाकर अल्फाज बनता है अरबी में। ये क्योंकि ये हमारी उर्दू जबान से हम देख रहे हैं, लेकिन इसको अलहदा कर करके देखेंगे तो हुर्फ की तरफ अल्फाबेट्स ही हमें मिलेंगे। और फिर ये किताब, ये सिर्फ एक लफ्ज है। अब दो लफ्ज को हम अगर एक जगह इकट्ठे करेंगे, जैसे कि वो एक लफ्ज हो गया और किताब एक लफ्ज हो गया, वो किताब, दो को अगर हम मिलाएंगे अल्फाजों को तो ये फ्रेज बन जाएगा। ऐसे इसी तरीके से फ्रेजेस के बाद में सेंटेंसेस बनेंगे, वो किताब है, वो किताब यहाँ पर थी, इस तरीके से जहां पर पूरे आपको मुकम्मल बात मायनों के साथ में मिलती हैं। वो किताब टेबल के ऊपर है, तो इसमें क्या है, पूरा आप इसे बता दे रहे हैं कि किताब कहाँ पर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, यानी कि मुकम्मल एक पूरा आप बात का मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कंप्लीट मफहूम के साथ में। तो इसको बेजोड़ किया जाएगा लफ्जों को, तो हम फिर हुर्फ हिज्जा की तरफ में आ जाएंगे, यानी कि हरूफ की तरफ में हम वापस पलट कर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई है। दूसरा, इसमें जो हम देख रहे हैं कि अल्फाज लफ्ज के मायने हैं, तो अल्फाज और हरकत, हरकत और हुर्फ, सॉरी हुर्फ और हरकत, ये दोनों को जब मिलाया जाएगा, जैसे किताब के ऊपर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जेर जबर पेश कहाँ पर लगता है, हमें पता है, हम ये उर्दू की तरफ में देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है। हुर्फों को और जब हरकत को मिलाएंगे तो आपके सामने लफ्ज बनकर आएगा। अब लफ्ज में भी दो तरीके के मिलेंगे हमें लफ्ज। सबसे पहले यहाँ पर जो कि हम हरूफुल हिज्जा की तरतीब को जान लेते हैं, और ये जान लिए हरूफुल हिज्जा और हरकत के मिलाने से लफ्ज वर्ड बनाते हैं, यानी कि लफ्ज बनता है। लफ्ज को तकसीम किया जाता है बामायने और बेमायने लफ्जों में। देखिए, लफ्ज जो होता है ना, लफ्ज के मायने अगर रूट वर्ड में लुग़वी मायनों में देखेंगे तो फेंकने के होते हैं। तो वो इंसान जो अपनी बात अपने मुंह से निकाल रहा है, अपने एहसासात को जता रहा है, किन से, किन की मदद से, क्या वजह से,
और उससे किस चीज की हेल्प मिल रही है अपनी बात रखने के लिए, वो है हुर्फ। अल्फाज की वजह से वो जब हुर्फों को मिला रहा है, हुर्फों को मिलाने के बाद उसे एक लफ्ज मिल रहा है। अब ये जब इंसान बात करता है तो उसमें दो तरीके के बातें मिलती हैं। एक तो वो मायने वाले लफ्ज होंगे या फिर बेमायने होंगे। मायने और बेमायने से मुराद क्या है? मायने वाले लफ्ज ये होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत वाज़ेह है और बहुत इजी है मायने और बेमायने को समझने के लिए। पानी, वानी। तो पानी तो मालूम है कि पानी पानी है, पीने की चीज है, तहारत लेने की चीज है, गुस्ल लेने की चीज है। पानी हमें पता है, पानी कई तरह, समंदर का पानी हो सकता है, बारिश का पानी हो सकता है, यानी पानी आपको पता है। लेकिन वानी, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है ना डिक्शनरी में, ना किसी की बातचीत में, लेकिन इसे जोड़ा जाए तो ये बेमायने है। चाय, वाय, नाश्ता, न, के साथ में जो नाश्ता वाश्ता ऐसे करते हैं ना, यानी हम बात कुछ उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो उसको बेमायने कहा जाता है, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। और जो मायने होते हैं, मायने के साथ में जो लफ्ज की अदायगी होती है, वो असल तो मायने वाले होते हैं, जिसे कि मौजू भी कहा जाता है। आप कहते हैं ना कि मौजू क्या है बताइए, मौजू पे आइए, यानी पॉइंट की बात क्या है बताइए। तो मौजू होते हैं, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो लफ्ज अल्फाज क्या होते हैं, वो मायने वाले होते हैं, बा मायना। देखिए क्या फर्क है यहाँ पर, बा मायना एक है, बे मायना। लेकिन बा मायना यानी कि मायने के साथ जो अल्फाज आपको मिल रहे हैं, जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, वो बा मायना होगा या बे मायना हो गया। बा और मा, बा का मतलब साथ का होता है, मायने के साथ। बा का मतलब साथ होता है। बिस्मिल्लाह, क्या कहते हैं, बी, जो बा आ रहा है ना वहां पर, उसी तरीके में है ये। बा के मायने साथ के होते हैं। तो बा मायना और बे मायना, के जिसमें मायने नहीं मिलते हैं। तो जो मायने के साथ में अल्फाज मिलते हैं वो मौजू होता है। बेमायने जो अल्फाज होते हैं वो मुहमल होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, बेमायने को पढ़ना है या बा मायने को पढ़ना है, मौजू को पढ़ना है या मुहमल को पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें मायने के साथ में पढ़ना है, हमें कुरान मजीद के हिसाब से सब कुछ देखना है। तो कुरान मजीद में एक हुर्फ भी, अल्फाज ही नहीं बल्कि एक हुर्फ भी बेमायना नहीं है, मुहम्मल नहीं है, बल्कि हर बात का मौजू है, हर बात बा मायना है। तो हमारी जो पूरी बात होगी, हमारा जो पूरा इल्म होगा वो मायनों के साथ होगा, बा मायना होगा, मौजू होगा, ना कि मुहम्मल होगा। जो बेमायने होगा, मुहम्मल होगा, तो हमें उसे कंसिडर भी नहीं करना है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेन देन सिर्फ बा मायने अल्फाज के साथ में है, बा मायने हुर्फ के साथ में है, बा मायने इसम के साथ में है, बा मायने सर्फ के साथ में, फेल के साथ में। ठीक है, ये मायने और बेमायने के हो गए, हर हुर्फ। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे हरकत। हरकत क्या होते हैं, जबर, जेर और पेश। हरकत, जबर, जेर और पेश, इसे हम क्या कहेंगे, वोवेल्स कहेंगे। इसमें अलामत सुकून भी आता है। और क्या क्या हरकतें इसमें हम पे पाई जाती हैं वो देखेंगे। अरबी जुबान में तीन किस्म के हरकत होते हैं। कितने, तीन हिस्से, जबर, जेर, पेश। ये हरकत को किसी भी हरूफ का तलफ्फुज अदा करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हम देखें किताब, फॉर एग्जाम्पल किताब। अब किताब, किताब में काफ के नीचे जेर होगा, ता पर जबर होगा, और बा अलामत सुकून के साथ होगा। तो ये क्या है, ये वॉवेल्स है अरबी के। जैसे हमारे इंग्लिश में वॉवेल्स क्या होंगे, A E I O U, 5 वॉवेल्स इंग्लिश में। लेकिन इसमें जो वॉवेल्स है, जिसे हम हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहा जाता है। और इसमें वॉवेल साइंस की पहचान होती है, यानी कि हमें पढ़ने में आसानी होती है। इस वॉवेल्स की जरूरत हमें होती है, अरबी जुबान जो सीखते हैं, अरबी जुबान जिसके लिए नई होती है, उन्हें इन साइंस की जरूरत होती है। तो ये हमारी
आसानी के लिए वॉवेल साइंस है। जो अरबी जानते हैं, जो अरबी बोलचाल रखते हैं, उन्हें वॉवेल साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ पर जबर जेर, ऑटोमेटिकली वो पहचान जाते हैं। वो बोलने में भी गलती नहीं करते हैं, पढ़ने में भी, क्योंकि उनकी जबान ही अरबी होती है, उनकी मदर टंग ही अरबी होती है। लेकिन अब उसके बरअक्स जिसे अगर पढ़नी हो तो वो क्या करें, उन्हें हेल्प पड़ती है वॉवेल्स की। वॉवेल्स की पहचान क्या है, वॉवेल्स क्यों हमें जरूरत पड़ती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, CAT, कैट। ये आप यहाँ का क्या देख रहे हैं, कैट, बॉल, मैट। अब इसमें आप सब देख रहे हैं कि ए। अगर मैं ए को निकाल दूं तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको कुछ भी नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ सकते हैं क्या? CT, MT, FT इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसमें कुछ मायने ही नहीं मालूम पड़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जब तक कि इसमें वॉवेल्स नहीं आएंगे। इसमें वॉवेल्स क्या है इंग्लिश के, A, E, I, O, U, कैट। अच्छा, M, E ले लेंगे, मेट हो गया, और FIT, फिट। जब तक के वॉवेल्स इसमें नहीं आ रहे हैं, अल्फाबेट्स के बीच में, आगे पीछे, तब तक हम इसे अदा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अरबी में भी आप वॉवेल्स यानी कि जबर जेर पेश के बगैर में पढ़ना मुश्किल है हमारे जैसे के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको, यहाँ पर मरफू लिखा हुआ है, देखिए मरफू। अभी यहाँ पर कितनों को पता है कि कब किस पर जबर आना है, किस पर पेश आना है, किस पर जज्म आना है? ये हमें सबको नहीं पता होता है। हम अरबी बोलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम लिखे हरकत के साथ में, जैसे यहाँ पर तनवीना है, आपको तनवीन जबर है, तनवीन जेर है, जबर है, पेश है, ये लिखा हुआ है, इसीलिए आप पढ़ सक रहे हैं। अभी यहाँ पर इब्राहिमू है, यहाँ पर इब्राहिमा है। कहाँ पर इब्राहिमा आना है, कहाँ पर इब्राहिमू आना है, हमें नहीं पता है। हम इस चीज को सीखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पर बगैर जेर जबर के लिखे तो ये पढ़ तो सकते हैं हम, उर्दू बोलने उर्दू के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही अरबी की अगर बात आए तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो चीज देखना है हमें। वापस PDF की तरफ, ये फतहा। अब यहाँ पर जैसे हम डेफिनेशंस को जितने भी देखे, वाहिद, तस्निया, जमा, सब देखे। जबर जेर पेश, क्योंकि ये हरकत है और वोवेल साइंस है, इसको दूसरा भी नाम क्या आता है वो आपको याद रखना जरूरी भी जरूरी है। जरूरी ब जरूरी, यानी जबर का दूसरा नाम, जेर का दूसरा नाम, पेश का दूसरा नाम। आवाजें वही रहेंगी, इसका जो तरीका होता है वही होता है, लेकिन इसका जो दूसरा मायना होता है, दूसरा जो लफ्ज इसके लिए मिलता है, उसे अरबी पढ़ते वक्त में याद करना जरूरी होता है, और उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैं जबर जेर पेश आपको करें, मैं आगे चल के क्लासेस में जबर जेर पेश का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि फतह कहूंगी, कसरा कहूंगी, दम्मा कहूंगी, तनवीन कहूंगी, सुकून, ये तो जजम, जजम, सुकून भी जजम के साथ, क्योंकि कुछ लफ्ज मजजूम के तौर पे आपको बताना होता है, जो कि जजम से ही लिया जाता है वो वर्ड। तो फतह जबर का दूसरा नाम है, फतह जबर। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आ की तरफ में, जैसे बा जबर बा। कसरा जेर का दूसरा नाम है, जेर का नाम दूसरा कसरा है, जेर को कसरा भी कहा जाता है, जबर को फतह कहा जाता है, पेश को दम्मा कहा जाता है, और ये पढ़ने की सेम अदायगी होती है। तनवीन, ये तनवीन तो हम सबको पता ही है। अब जो तीन आपको आज नए नाम मिले हैं, एक तो माइन, बा मायना और बे मायना, उसका मैंने आपकी अपनी नॉलेज की गेन के लिए मौजू और मुहमल बताया है, उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस PDF में नहीं मिलेगा।
दूसरा कि जबर को फतह कहेंगे, जेर को कसरा कहेंगे, पेश को दम। यहाँ बहुत सारी बहनों को मालूम भी होगा, लेकिन जिसके लिए नया है वो प्लीज इसको याद कर ले। अब इसमें जैसे इंग्लिश की तरह से ही आप देख रहे हैं, दूसरा पेज नंबर पे हम जा रहे हैं। इंग्लिश की तरह अरबी जुबान में दो किस्म के हरकत होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट वोवेल्स, एक होते हैं लॉन्ग वोवेल्स। यानी ये सिर्फ हुर्फ और हरकत मिलाकर ये तलफ्फुज करना होता है। लॉन्ग वोवेल्स में क्या होता है, ये हुर्फ, हरकत और अलिफ मद हर्फ मिलाकर तलफ्फुज किया जाता है। यानी कि जैसे अगर सिर्फ आपको अपनी कायदे की नूरानी कायदा जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें क्या करेंगे, हरकत का जो जबर जेर पेश है उसको जरा भी नहीं खींचेंगे। यही होता है ना उसका कायदा, कि जबर जेर पेश की जो हरकत होती हैं उसको थोड़ा भी ना खींचे। उसी के बरक्स आपको मद में जब आप जा रहे हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, थोड़ा सा खींचेंगे आप। खींचते ना, एक हरकत थोड़ा उसमें ज्यादा हो जाएगी। उसको जो खींचना है जहां पर सिर्फ जबर जेर पेश है वो शॉर्ट वेवल्स होगा। अलिफ वाव या फिर मद वाले जैसे खींच कर अगर पढ़ना है तो वो लॉन्ग वोवेल्स होंगे। लॉन्ग वोवेल जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। और यहाँ पर लॉन्ग वोवेल्स में बा अलिफ जबर बा, बा या जेर बी, बा वाव पेश बू। तो ये हो गया शॉर्ट वोवेल्स जो सिर्फ तीन हरकत पर आपको बताया जा रहा है रेड में। और जो ब्राउन में दिख रहा है वो अलिफ या और वाव के साथ में मिलकर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग वोवेल्स हो गए हैं। यानी इस हरकत में एक नहीं है बल्कि आपको यहाँ पर अलिफ है, जेर आया है लेकिन उसके साथ या आया है, पेश है लेकिन उसके साथ में वाव है। तो उसके साथ आप आवाज को थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे, इसे कहेंगे लॉन्ग वोवेल्स। हुर्फ शम्सिया कमरिया हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो आज की क्लास आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक ही थी। अच्छा, अभी अलिफ और हमजा का एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती। ये इंग्लिश में है, क्या लिखा मैंने, इंसान। और ये अरबी में इंसान लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि हमें इंसान कैसे पढ़ना है। अगर हम इंसान को यहाँ पर जबर जेर और पेश के साथ में हम लिखेंगे तो अलिफ पर क्या मिलेगा हमें, अलिफ को हम क्या लगाएंगे। जी, कौन बहन बताना चाहेंगे। जी, आप बताइए, शेख नाजिया। जी, इस तरह अलिफ पे हमें कचरा लगाते जी, कसरा लगाएंगे। और नून पर हैं। क्या लगाएंगे, जजम लगा। जज़म लगाएंगे। सीन पर, अलिफ फतहा। जी, और अलिफ पर नून क्या पे आएगा। फतहा। अलिफ पर अलिफ से पहला फतहा आता। तीन फतह अलिफ सुकून। जी, नून फतहा। अलिफ पे क्या आएगा। फतहा। नहीं माँ, अलिफ पे सबसे पहले का जो अलिफ है, सबसे पहला अलिफ। अच्छा, आप वो बोल रहे हैं। जी। कचरा बोली थी ना। सदा मैं अलिफ बोल तो मैं तीन फतहा अलिफ वही बोल रही, मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी। पहला अलिफ पे है तो हम्म कचरा लगाना उसका नाम। हम्म। अलिफ कचरा। नून को जजम लगा के ए दो मिला के इन पढ़ना। जी, तो तीन एक फतह अलिफ, अलिफ सुकून हाँ। हम्म, एक अलिफ आप देख रहे हैं, एक अलिफ जो आप देख रहे हैं, एक अलिफ पे आप हरकत है और एक अलिफ पर नहीं है, करेक्ट। जी जी, करेक्ट। 1 मिनट, जैसे आप यहाँ पर देखिए,
इसको मैं इरेज करती हूँ। अलिफ के नीचे जेर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये अलिफ और हाँ हमजा है को ऊपर आज आज ही क्लियर कर लेंगे हम। अलिफ के नीचे जेर है, नून के ऊपर जज़म है, सीन पर जबर है, लेकिन ये अलिफ पर कुछ भी है? मैं यूज कर कुछ रहा भी हूँ। नहीं है। इसी वजह से तो ये अलिफ कहा जाएगा, लेकिन ये अलिफ के नीचे जो जेर है ये अलिफ नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये हमजा होगा, हमजा जेर, हमजा। अच्छा। लेकिन ये अलिफ है और ये भी अलिफ है। तब यहीं पर इस इख्तलाफ को यहाँ पर हम ज्यादा इसको सोचेंगे ही नहीं। अलिफ तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग वोवेल्स में है, यानी कि ये अलिफ के साथ ही पढ़ा जाना है। अगर मैं ये अलिफ को हटा दूं तो इंसान पढ़ेंगे, इंसान नहीं पढ़ सकते, इंसान पढ़ा जाएगा। इंसान हमें पढ़ना है तो सीन के बाद में अलिफ हम लगा रहे हैं। तो अलिफ क्यों, चूंकि हमेशा काली होता है, अगर हरकत हो तो वो हमजा कहलाता है, तो ये अलिफ जेर कहना गलत हो जाएगा। हमजा जेर, नून जज़म, सीन जबर, लेकिन अलिफ खाली है। तो ये हमें लिखना है क्योंकि ये हमें पूरी आवाज को ये मुकम्मल करता है इस अलिफ के साथ में, लेकिन अलिफ यहाँ पर खाली है। दोनों भी अलिफ है देखने में, लेकिन जैसे ही हरकत होती है तो वो हमजा हो जाता है और ये खाली रहता है। और ये नून अलामत सुकून है। ठीक है ठीक है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाखिर दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हुर्फ हिज्जा और जितना भी हमने देखा है, जितने अल्फाबेट्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के भी हैं, मायने के साथ में और बा मायने के साथ में, बे मायना बा मायना क्या कहते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। इस पर अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज बिना झिझक इसको